Hello and very good evening to all the students. So students, let's begin our today's English dictation. So please bring your English copy, pencil, pen, eraser, and we will start our English dictation. So please start your dictation. So write it down. Trees can live up to trees can live up to trees can live up to hundreds of years. Full stop. Trees can live up to hundreds of years. Full stop. Trees can live up to hundreds of years. Full stop. A small tree with thin stems. A small tree with thin stems. A small tree with thin stems. A small tree with thin stems and thin branches. Just write it down. A small tree with thin stems and thin branches is called a shrub. Full stop. A small tree with thin stems and thin branches. Okay, so write it down. A small tree with thin stems and thin branches is called a shrub. Full stop. Cotton plant, hibiscus plant, hibiscus plant, rose plant, tulsi plant are shrubs. Full stop. Cotton plant, hibiscus plant, rose plant, tulsi plant are shrubs. Full stop. And I think you must have seen these plants. Okay, these are very common plants and everybody must have seen it. So write it down. Cotton plant, hibiscus plant, rose plant, tulsi plant are shrubs. Full stop. Okay, so writing few more lines. Small trees with very soft stems. Small trees with very soft stems are called herbs. Full stop. Small trees with very soft stems. Just write it down. Small trees with very soft stems are called herbs. Full stop. Mint, coriander, grass and spinach are herbs. Full stop. Small trees with very soft stems are called herbs. Full stop. Mint, coriander, grass and spinach are herbs. Full stop. Okay students, so now here we have finished our English dictation and now we will tally it. Okay, so please tally your English dictation. Trees can live up to hundreds of years. Full stop. A small tree with thin stems
and thin branches is called a shrub, full stop. Cotton plant, hibiscus plant, rose plant, tulsi plant are shrubs, full stop. Small trees with very soft stems are called herbs, full stop. Mint, coriander, grass and spinach are herbs. Okay students, now here we have finished our English dictation and now we will proceed to write Hindi dictation. So please open your Hindi copy and we will start our Hindi dictation without any delay. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना हिंदी का डिक्टेशन लिखते हैं। और कल हिंदी डिक्टेशन में हम लोग एक बाघ के ऊपर स्टोरी लिख रहे थे। आज भी उसी स्टोरी को हम लोग आगे लिखेंगे और देखेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। तो चलिए लिखिए। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा, पूर्ण विराम। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा, पूर्ण विराम। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा, पूर्ण विराम। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं, पूर्ण विराम। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं, पूर्ण विराम। बस में कई लोग बैठे हैं, पूर्ण विराम। आगे वाली सीट पर लिखिए। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं, पूर्ण विराम। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं, पूर्ण विराम। दो छोटी लड़कियां बैठी थीं, पूर्ण विराम। ओके, अब हम लोग आगे का नेक्स्ट पैरा लिखेंगे। तो लिखिए। अचानक छोटे बाघ को लगा। हाँ लिखिए, बहुत ही सिंपल स्टोरी और अच्छी स्टोरी है। तो लिखिए। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं, पूर्ण विराम। और उसे भगाना चाहते हैं, पूर्ण विराम। और उसे भगाना चाहते हैं, पूर्ण विराम। तभी सामने की सीट पर
हाँ लिखिए, तभी सामने, तभी सामने की, तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी, तभी सामने की सीट पर, हाँ लिखिए, तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी, बैठा आदमी उठा और, तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर, अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा, अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा कूदकर, कूदकर, सॉरी, अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर, कूदकर नहीं खोलकर है ना, ठीक है, अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया, पूर्ण विराम, बाहर कूद गया, पूर्ण विराम, अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया, पूर्ण विराम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने हिंदी का भी डिक्टेशन फिनिश कर लिया। अब हम लोग अपने हिंदी के भी डिक्टेशन को एक बार टैली करेंगे, ठीक है। तो आप लोग टैली करें। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा, पूर्ण विराम। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं, पूर्ण विराम। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं, पूर्ण विराम। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं, पूर्ण विराम। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया, पूर्ण विराम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना हिंदी का भी डिक्टेशन फिनिश कर लिया है और हमेशा की तरह जो भी हमने यहाँ पे बोला है वो आपको एक पीडीएफ के रूप में वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपने डिक्टेशन को भी टैली कर सकते हैं और जो भी आपकी मिस्टेक हो उसे कोशिश करें कि एटलीस्ट 5 टाइम्स जरूर लिखें। ओके, और हमारे इस चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।